Hello learners, today we are going to study the second chapter of genetics, that is molecular basis of inheritance, जो हमारे थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से भी मिलता है. फॉर एग्जाम्पल the basic structure of DNA and RNA. So today in this chapter we will be learning about the structure of DNA, that is DNA structure and its packaging, that how our 2.2 meter long DNA is packaged in the nucleus, which covers our very important topic. It is very important topic from NEET point of view, right? तो यहाँ पे हमने पूरा अपना कंसंट्रेशन रखना है, ध्यान रखना है, बिकॉज हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज वेल. So this is more like amalgamation of class 11th biomolecules and class 12th molecular basis of inheritance. So let us now begin with our topic. So beta, in 11th class in the chapter biomolecules, you have studied various biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins, etc. Right? But in today's topic, we are going to discuss about one of the largest biomolecule. किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? One of the largest biomolecule, and that is our DNA. Right? So before that, let us first talk about the discovery कि किसने देखा that something is present near the nucleus and moving on to the next generation. So उसके लिए let us first talk about the cells of owl. हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? Cells of owl. Right? So there was a scientist whose name was Michel. So he was the scientist जिसका नाम क्या था? Michel. Alright? So what he did was he extracted a substance from the nucleus of our cell. ठीक है? किसमें से निकाला? Nucleus of our cell से एक substance निकाला. Right? And he saw that substance is responsible for heredity, कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम मिशर ने रख दिया न्यूक्लियन. क्या रख दिया? न्यूक्लियन. राइट? इट वॉज बिफोर न्यूक्लिक एसिड. तब न्यूक्लिक एसिड हम नाम नहीं जानते थे या नहीं डिस्कवर हुआ था. सो इट वॉज कॉल्ड बिफोर एज न्यूक्लियन. राइट? देन केम द साइंटिस्ट ऑल्टमैन. सो इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ऑल्टमैन. ऑलराइट? नाउ ही सॉ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन ऑलरेडी डिस्कवर किया था मिशर ने, ही सॉ दैट न्यूक्लियन इज एसिडिक इन नेचर. दैट न्यूक्लियन इज एसिडिक. ऑलराइट? So since the nature of nuclein was acidic, so he named that structure as nucleic acid. He then named it as nucleic acid. Alright? तो पहले क्या था? पहले नाम था न्यूक्लिन, जो मिशर ने देखा. Then ऑल्टमैन ने देखा and he saw that nuclein is acidic in nature, so he named it as nucleic acid. So we know that nucleic acids are of two types. न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं बेटा. दे आर वेरी कॉमन, द नेम्स आर वेरी कॉमन. यू ऑल आर वेरी मच अवेयर कि उनके नाम क्या हैं. ठीक है? एक तो वही स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज आवर डीएनए. फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid, and second one is the RNA, that is ribonucleic acid. All right? So beta, if we talk about DNA first, so DNA के केस में बेटा we know that it is present in most of the organism. Almost every organism has DNA, right? So I can write down here that it is present in most of the organism. ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है डीएनए.
right? And it is also the largest biomolecule. It is the largest biomolecule. ये याद रखना है बेटा, ठीक है, कि largest biomolecule कौन सा है, and that is our DNA, right? All right, if we talk about structure, थोड़ा बेसिक में अगर हम बात करें तो DNA को हम कंसिडर करते हैं that DNA is a polymer. It is a polymer. Now what do you mean by poly? First of all, poly का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है? तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट मीन्स कि डीएनए के स्ट्रक्चर में देयर इज समथिंग which is attached together and it is more than one. That is why it is poly. All right? So अगर हम बात करें बेटा तो मोनोमर ऑफ डीएनए हम किसको कंसिडर करते हैं? मोनोमर, जिसमें एक चीज की बात कर रही हूं which is attached together. मोनोमर ऑफ डीएनए क्या है बेटा? इट इज न्यूक्लियोटाइड. नाम याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? इट इज द न्यूक्लियोटाइड. दिस इज सी. ऑलराइट, सो मोनोमर हो गया न्यूक्लियोटाइड. अब जब बेटा these monomers are joined together, it means if the nucleotides are joined together in a long chain, so that means then the DNA will be called as polynucleotide. Polynucleotide chain. It means कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो बेटा आपस में ज्वाइन कर रहे हैं and they are forming a polymer, DNA polymer बना रहे हैं which contains nucleotide. और उस हम स्ट्रक्चर को the structure of DNA, we also called it as a polynucleotide chain because it has various nucleotides in it. All right? Whereas in the case of RNA beta, RNA is present in some viruses only. It is present in some viruses only and DNA सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. बट सिंस आवर टॉपिक इज DNA, हम DNA के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, सो वी विल टॉक अबाउट DNA हियर. ऑलराइट. अच्छा, एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है that the number of nucleotides. अब आपको पता है that DNA has a lot amount of nucleotide in it and the number of nucleotide in an organism is always fixed. हर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियोटाइड फिक्स होता है. ऑलराइट, ये बात हमने याद रखनी है. ऑलराइट, ये नोट मैं आपको लिख दे रही हूं यहां नीचे, दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड is fixed in each organism. It does not varies. All right. Let us see his example first. For example, in case of humans, now humans have double-stranded DNA. All right. And the number of nucleotides which are present in humans are 3.3 into 10 raised to power 9 base pairs. All right. This is in case of humans. And if we talk about Escherichia coli, that is E. coli. All right. It also has double-stranded DNA, and the number of nucleotides present in E. coli are 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. Now the number that we have just discussed, it will be important when we will do calculations in case of, in the topic packaging of DNA. Packaging of DNA में इनकी थोड़ी बहुत calculations हम करेंगे. For this reason, you must remember the number of nucleotides in case of humans and in case of E. coli. Let us now talk about the structure of DNA. As we know, beta, structure of DNA, it is composed of the chain of nucleotides, right? And that is the reason DNA is called as or considered as a polynucleotide chain. Polynucleotide chain because it has various nucleotides in it. ठीक है? And if we talk about a single nucleotide, अगर हम single nucleotide लेते हैं तो बेटा it is made up of 3 subunits. 3 सबयूनिट्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द फॉस्फोरिक एसिड, सेकेंड इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड थर्ड वन इज द नाइट्रोजनस बेसिस.
राइट? तो पहले देखते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड. द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज लाइक दिस. हियर इज वन फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड OH, single bond OH, again single bond OH, and then double bond O. So this is the structure of phosphoric acid. And now let us talk about deoxyribose sugar. But do you know how many carbons does it has? Deoxyribose में कितने कार्बन होते हैं? So it has 5 carbon in it. ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है. इंपॉर्टेंट है बेटा. ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि किसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस नाउ ट्राई ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर. सो इट इज अ 5 कार्बन रिंग. तो आई एम फर्स्ट ड्रॉइंग अ 5 कार्बन रिंग हियर. ऑल राइट, नाउ आई विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर. हियर इज OH, HH, then HOH, and then CH2OH and then H. ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए बेटा. इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा. नाउ आई विल मार्क द 5 कार्बन्स. दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एंड इट इज द 5th कार्बन राइट हियर. ऑल राइट, अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा डीऑक्सीराइबोस शुगर का. But if you ask me about the structure of ribose sugar which is present in RNA, तो बस छोटा सा डिफरेंस है बेटा. सेकेंड पोजीशन पे जो दूसरा हाइड्रोजन है यहां पे, इसकी जगह देयर इज OH इन केस ऑफ राइबोज. तो इसका मतलब जो डीऑक्सी है, डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया? एक सिंगल O जो है इट इज मिसिंग फ्रॉम डीऑक्सीराइबोज, राइट? बिकॉज यहां पे O हो जाता तो ये राइबोज बन जाता. बट सिंस दैट सिंगल O is missing in this case, that is why this structure is deoxyribose sugar. All right, clear till here? ये दोनों स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए. आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, साथ साथ बना रहे हैं आप नोट्स, which is it is very important for you to make notes, right? Now we'll talk about beta nitrogenous bases. So nitrogenous bases are of 2 types. 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. अब नाइट्रोजनस बेसिस का नाम है, इट मीन्स दे हैव अ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर, राइट? 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्यूरिन्स. पहले का नाम है प्यूरिन्स एंड सेकंड इज द पिरिमिडिन्स. पिरिमिडिन्स. अब बात करेंगे बेटा इनके स्ट्रक्चर की. तो प्यूरिन्स बेटा दे जनरली हैव 9 मेंबर्स इन देयर स्ट्रक्चर. 9 members, and the structure is the double ring structure. Their structure is double ring structure. Whereas in case of pyrimidines, they have 6 members only in their structure and are single ringed structure. All right. अब हम इनको याद कैसे रखेंगे बेटा? जैसे हम बोलते हैं ना कि नाम छोटे लेकिन दर्शन बड़े. सो प्यूरिन्स का नाम क्या है? छोटा है, but it has a double ring. It has 9 members. So contrast we'll remember that purines has double ring structure and 9 members, whereas pyrimidines have single ring and 6 members. So let us now quickly discuss the structure of purines and pyrimidines. So purines, as you see that it has 9 members in it. 9 members. तो एक बार मार्क कर लेते हैं फटाफट purines में, right? So this is number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And in case of pyrimidine, it had 6 members. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. So since we know that purines and pyrimidines being nitrogenous bases, they have nitrogen in them. But at what positions? अब पोजीशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ होते हैं. तो बेटा प्यूरिन्स के केस में यू सी कि हम वो प्लेसेस देखेंगे जहां पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं. तो फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी नो दैट एट फर्स्ट पोजीशन द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट.
नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट है? It is present at position number 1 here, number 3, number 7 and number 9. So 1, 3, 7, 9 are the position of nitrogen in case of purines. Whereas in case of pyrimidines, beta nitrogen kahan kahan present hai? Now you can easily make out where the nitrogen is. So it is at first position and it is present at the third position. So here is 1 and 3. At first and third position, then nitrogen is present. And what about the other places? What is present at the other places? बाकी जगह पे क्या है? If the other positions has nitrogen, then the remaining position have carbon. They have carbon. C, 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 C. Here also it has carbon, carbon, carbon and carbon. All right? तो ये पोजीशन भी हमें पता होनी चाहिए. All right? तो अब बात करते हैं बेटा प्यूरिन्स की. प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बेटा? प्यूरिन्स हैव जनरली द नेम adenine. They have adenine as nitrogenous bases. Adenine and guanine. Adenine and guanine. Whereas pyrimidines have nitrogenous bases called as thymine, thymine and cytosine. Cytosine. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको पता होने चाहिए. प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स में क्या क्या आते हैं? बिकॉज बेटा ये आपके क्वेश्चंस में रिपीट होते रहेंगे. रिपीट, दे विल कीप ऑन रिपीटिंग. सो दैट इज व्हाई यू मस्ट रिमेंबर. ऑलराइट, अब एक बार फटाफट बेटा आरएनए हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए में क्या होता है. आरएनए हैज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरिक एसिड सेम एज डीएनए. फॉस्फोरिक एसिड वैसा ही रहता है. ऑलराइट, उसके बाद आ जाओ बेटा राइबोस शुगर. राइबोस शुगर होता है इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर. तो उसमें क्या डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड? दैट एट 2' पोजीशन इंस्टेड ऑफ H, OH is present in case of ribose sugar. Now third we will talk about the nitrogenous bases. Nitrogenous bases में क्या क्या present होते हैं? They also have purines and pyrimidines and they have adenine which is same as DNA. Adenine. Second, guanine which is also same as DNA. Now if we talk about pyrimidine, so DNA had thymine, but the difference here is it has uracil. Now RNA has uracil in case of thymine and cytosine is same as DNA. So the only difference here we talk about in case of nitrogenous bases that RNA has uracil in case of thymine. तो ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा बेटा. अगर आपको नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे then you don't have to get confused and write down thymine in case of RNA. All right. So you will write down adenine, guanine, uracil and cytosine. We know till here that nucleotides have 3 subunits, that is deoxyribose sugar, phosphate group and nitrogenous bases, right? So अब हम बात करेंगे कि किस तरीके की बॉन्डिंग होती है in the DNA, right? So we will start with the basic first. So if I join sugar plus bases, if I join both of them, then this type of bond or this structure will called as nucleoside. It will called as nucleoside. All right. But we have seen that monomer of DNA is nucleotide. So how am I going to form nucleotide now? All right. So if I add the third subunit with the sugar and bases, that is the phosphate group. That is when I add the phosphate group, now this whole structure will become nucleotide. Now it will become nucleotide. All right.
So we are clear till here, and we know that monomer of DNA is what? It is a nucleotide. All right. So let me write in a more simpler way so that you can understand. So I am writing sugar here, sugar plus base. All right. And it forms what? It forms nucleoside. All right. We know till here. All right. So sugar के लिए मैंने symbol लिख दिया S plus nitrogenous bases. First we will start writing with the purines. So here is adenine, sugar plus guanine, sugar plus thymine, sugar plus cytosine. So all these four are what? Purines and pyrimidines, that are the nitrogenous bases. All right. Now, what kind of, if I talk about the structure they are forming, so what they are forming is adenosine. अब आपको पता है कि मैंने डीऑक्सी क्यों लगाया है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए हियर, सो आई एम राइटिंग डीएनए ऑन टॉप ऑफ इट. This is, we are talking about DNA, the structure of DNA. All right. So sugar plus adenine will form deoxyadenosine. Sugar plus guanine will form deoxyguanosine. And sugar plus thymine will form deoxythymidine. Sugar plus cytosine will form deoxycytidine. It will form deoxycytidine. All right. Now I'm going to add the third subunit with it. So I am adding one phosphate group, and now it will form what? Nucleotide. It will now form the nucleotide. Here it was nucleoside, sugar plus base. But if I add phosphate group with it, it will form a nucleotide. All right. Now the structure will be, now it will be formed as deoxyadenosine monophosphate. Monophosphate. Why I have written monophosphate? Because I have added one phosphate group. And that is why mono is for one and phosphate is the phosphate group that I have added. Now it has become a nucleotide that is called as deoxyadenosine monophosphate, or its short form is DAMP. Alright. Similarly, here it will be formed as deoxyguanosine monophosphate. Here it will be formed as deoxythymidine monophosphate and deoxycytidine monophosphate. All right. Are we clear till here? So these are the various nucleosides. For example, deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxythymidine, and deoxycytidine. Whereas the nucleotides are deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxythymidine monophosphate, and deoxycytidine monophosphate. All right. Now, if I want to draw the structures of RNA, अगर मुझे RNA का structure draw करना है, so what am I going to do now? अब मुझे कैसे पता लगेगा? How am I going to derive RNA from here? So simple as that, as we have already discussed that we are going to remove deoxy from DNA. We are going to remove deoxy from DNA and it will become RNA. For example, if I remove deoxy from the DNA, it will become adenosine, guanosine, thymidine, cytidine. But क्या मैंने सही बोला sequence? Now the question is, क्या मैंने सही बोला? So मैंने adenosine, guanosine, cytidine तो सही बोला. But what about deoxythymidine? क्या यहाँ पे थाइमिडिन आना चाहिए आरएनए में? क्या यहाँ पे थाइमिडिन आएगा आरएनए में? So the answer is
No, because I have already told you that instead of thymidine, RNA has what? Thymine की जगह RNA में क्या होता है? It has a uracil instead of thymine. So now, if I talk about nucleoside first, कि nucleoside क्या होएगा? तो nucleoside of RNA without deoxy will become uridine. And if I talk about nucleotide, then it will become uridine monophosphate. All right. Now it has become RNA, क्योंकि हमने यहाँ पे थाइमिन को यूरासिल से एक्सचेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. RNA में बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. Alright, clear till here? Okay, अब since we know that DNA and RNA both are nucleic acid, alright? But the question is, पहले क्या डिस्कवर हुआ था? DNA और RNA. So here, let me tell you that RNA was discovered first. RNA was discovered first, and it is more reactive as compared to the DNA. It is more reactive. RNA is more reactive as compared to DNA, and the reason is because it has a uracil in its structure, and because the uracil has the nature of reacting very quickly, that is why among DNA and RNA is more reactive. All right, clear till here? Now let me tell you another interesting fact, and it's quite tricky also. So if I add methyl group, at fifth position in RNA, all right, and kisme I'm adding it in the uracil. I'm adding it in uracil of RNA at fifth position. What am I adding? Methyl group. मैं methyl group add कर रही हूँ uracil में at fifth position. So it will become thymine. Which is the what? It is the pyrimidine. किस केस में होता है ये? DNA के केस में. It will become thymine. So its another name is 5-methyl uracil. 5-methyl uracil. Alright? अब ये जो नेम है 5-methyl uracil, इसके ऊपर बेटा नीट में क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है that what is not present in RNA. Yes, what is present in RNA, rather what is present in RNA. तो आप अगर देखोगे 5-methyl uracil, तो आप तो बोलोगे कि ये तो प्रेजेंट है बिकॉज RNA हैज यूरासिल, बट यू हैव टू लुक फॉर 5-methyl ऑल्सो, कि अगर 5-methyl uracil है तो दैट इज थायमिन ओनली बेटा, दैट इज थायमिन ओनली एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन RNA. सो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं नीट में. ऑलराइट, सो अभी तक वी हैव कवर्ड हाउ न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्मिंग एंड हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम द 3 सब यूनिट्स ऑफ द मोनोमर ऑफ DNA. इनके नेम्स हमको सबको पता लग गए हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज नेम्स इज दैट यू रिमूव deoxy, then it will become RNA. If you add deoxy, then it will become a DNA. And RNA and DNA में और क्या डिफरेंस है? RNA में थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट है. Alright? So we understood how sugar and bases and phosphate are joining, yes, and how nucleoside and nucleotides are formed. Now we will understand the types of bonds which are present in the structure of DNA. And for that, I am first going to draw the structure of nucleoside. First, I am going to draw the structure of nucleoside. And what do we have in the nucleoside? We have sugar plus base that forms the nucleoside. So for that, I am first going to draw the structure of nucleoside here. So first I am drawing the structure of sugar. For that, this is the structure of sugar, and now I am completing this structure. OHH, HH,
HOH, CH2OH and H. All right, and then I'm going to draw the structure of a nitrogenous base, and in that also I'm going to draw the structure of purines specifically. तो purines कैसे होते हैं बेटा? They are the double ringed structure. They are the double ringed structure. So I'm drawing here the double ringed structure of purines. All right. Now this is, now I'm going to now mark the positions. All right. तो सबसे पहले राइबोस शुगर में हम मार्क करते हैं. This is 1 dash position, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash. All right. Here I'm marking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All right. And at 9th position बेटा, 9th position, अच्छा हमने पढ़ा था कि इन नाइट्रोजनस बेसिस इट इज बेसिकली, ये क्या हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? प्यूरिन्स का. एंड सिंस इट इज अ नाइट्रोजनस बेसिस, इट इज अ नाइट्रोजनस बेस, सो इट हैज नाइट्रोजन एट वेरियस प्लेसेस. हमने प्लेसेस कौन कौन से पढ़े थे वो? इट हैज नाइट्रोजनस बेस एट फर्स्ट पोजिशन, थर्ड पोजिशन, 7th पोजिशन एंड 9th पोजिशन. तो बेटा 9th पोजिशन पे इट हैज NH ग्रुप, NH ग्रुप है इधर. ऑलराइट. अब हम बात करते हैं लिंकेज की, बॉन्ड की बात करते हैं कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड. ऑलराइट. सो नाउ वी विल लुक एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ राइबोस शुगर. बेटा फर्स्ट पोजीशन का जो OH ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन का OH ग्रुप विद द 9th पोजीशन H ग्रुप ऑफ प्यूरिन, इसमें ये ज्वाइन करके क्या रिमूव करेगा? इट विल रिमूव वाटर फ्रॉम हियर, 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन. इट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम हियर एंड इट इज फॉर्मिंग लिंकेज ऑफ 1-9, फर्स्ट पोजिशन ऑफ 1- पोजिशन ऑफ शुगर एंड 9th पोजिशन ऑफ प्यूरिन. And it is forming here glycosidic linkage after removing water from here, glycosidic linkage. And ये position जो है बेटा 1-9 glycosidic linkage, it is only formed in case of purine. It is only formed in case of purine. And अगर आप pyrimidine की बात करो तो pyrimidine में ये structure कैसा हो जाएगा? It is 1-1 glycosidic linkage. वहां पे ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ pyrimidine, इट विल फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये किसके केस में है? pyrimidine के केस में. समझ आ गया सभी को? ऑल राइट. नाउ इफ आई एड फॉस्फेट ग्रुप इन द न्यूक्लियोसाइड, देन क्या बनेगा? देन इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. फिर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड. ऑल राइट. तो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर. एंड फॉर दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर. 2 शुगर में ड्रॉ करूंगी यहां पे. Two sugars I'm drawing here. First one is this. It has OH, HOH, CH2OH and H. And here I am drawing the second sugar. Second sugar यहाँ draw कर रही हूँ मैं. यहाँ पे भी OH, HH, HOH, CH2OH and H. Alright. अब 2 शुगर है बेटा. फॉस्फेट 2 शुगर के बीच में बॉन्ड बनाता है. तो अब मैं फॉस्फेट ग्रुप इन दोनों के बीच में ड्रॉ करूंगी. यहां पे आ जाएगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप. ऑलराइट. हियर OH, OH एंड OH डबल बॉन्ड O. ये क्या आ गया? फॉस्फेट ग्रुप आ गया. ऑलराइट. अब हम बात करेंगे यहां पे बॉन्डिंग की कि बॉन्ड कैसे बना रहे हैं.
हाउ दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे बेटा, सबसे पहले शुगर देखेंगे। फर्स्ट शुगर के मैं मार्क कर देती हूं, से भी पहले आई विल जस्ट मार्क द पोजीशन इन बोथ द शुगर्स। दिस इज 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। Here also 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash. All right? अब हम बात करेंगे, we will try drawing the bonds, right? तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम फर्स्ट शुगर के थर्ड पोजीशन पे, 3 डैश पोजीशन ऑफ द फर्स्ट शुगर। तो यहां पे बेटा जो OH ग्रुप है, यहां का जो OH ग्रुप है with this H group of phosphate, it will remove water from here and यहां पे ये फॉर्म कर देगा कौन सा, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड सेम इन द लोअर साइड ऑफ द शुगर, यहां पे बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थर्ड पोजीशन, जो सबसे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड वाले शुगर के पास, वो है फिफ्थ पोजीशन पे। तो यहां फिफ्थ पोजीशन पे OH ग्रुप एंड द H ग्रुप ऑफ अनदर H ग्रुप ऑफ फॉस्फेट, it will also remove water and it will also form an ester bond in the lower side. All right? Now since there are two ester bonds which are being formed, दो ester bond form हो रहे हैं, तो the bond which is formed between the two sugars with phosphate is the phosphodiester bond. Phosphodiester bond and किस पोजीशन पे, 3 डैश एंड 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर। देख रहे हैं ना यहाँ पे 3 डैश, सबसे ऊपर वाले पे 3 डैश पोजीशन का OH ग्रुप and the one hydrogen from phosphate group is forming an ester bond, and same as जो second sugar है उसके fifth position का OH group and another H group from phosphate is forming another ester bond, and दोनों मिला के क्या हो गए, क्योंकि it is attached with phosphate, so the name has become phosphodiester bond. The name has become phosphodiester bond now. All right, so we have seen that sugar and nitrogenous base के बीच में फॉर्म होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ आ गया सभी को? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका मैं आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो हियर इज अ शुगर, यहां पे मैंने एक शुगर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये शुगर है, इट इज अटैच्ड विद द फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज अगेन अटैच्ड विद अनदर शुगर सेम। अब ये पूरी चेन चल रही है बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इट इज अटैच्ड विद अनदर शुगर लाइक दिस, then again it is attached with another phosphate and another sugar. All right, समझ आ गया? Now this sugar is bonded with a base, it is bonded with a base, it is also bonded with a base, it is also bonded with a base. Here also it is forming a base. All right, now this base is further bonded with another base but with the double bond, ठीक है, ये मैं आपको नेम लिख रही हूं विदाउट ड्रॉइंग एनी केमिकल स्ट्रक्चर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, राइट? ये बेस जो है ये दूसरे साइड में दूसरे बेस से ज्वाइन करेगा बट विद द हेल्प ऑफ अ डबल बॉन्ड। ऑल राइट, like this. Now understand this fact. हमें पता है DNA कैसा होता है, it is a double stranded structure, है ना, double stranded होता है, so on the another end also it is joining with sugar. अब यहां पे भी वही same scene start हो गया बेटा, sugar. Now here sugar is bonded with what? Phosphate group. Now this phosphate group is bonded with another sugar,
This again has bonded with the phosphate group. Phosphate group से this phosphate group is bonded with the sugar. All right. Now again this sugar is bonded with phosphate group, and then this phosphate group is bonded with another sugar, and they both are bonded with the glycosidic bond. तो अब देखो यहां पे this side, this particular side is one end or one strand, and this is another strand. एंड इनके अंदर देखो केमिकल बॉन्डिंग चल रही है, हाउ दे आर बॉन्डेड केमिकली बिटवीन अमंग ईच अदर। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला एंड है जो डीएनए का, सो इट हैज अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप एट 5'N. It has free phosphate group at 5'N and 3'OH group at 3'N, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे तो मैंने यहाँ पे 3' लिख दिया है, राइट। एंड आपको पता है कि फॉस्फेट बेटा OH ग्रुप के साथ बॉन्ड करता है, तो यहाँ पे हमने OH स्पेसिफिकली मेंशन किया है। आई बात समझ? बट अगर हम पोलैरिटी की बात करें बेटा, डीएनए की अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो बेटा डीएनए इज द एंटी पैरेलल, डीएनए इज एंटी पैरेलल, इट इज एंटी पैरेलल। I will tell you why. I will tell you why it is anti-parallel. So you see कि ये तो बात होगी एक तरफ की 5' to 3'N, बट इस केस में बेटा यहाँ पे इस शुगर में क्योंकि एंटी पैरेलल चल रहा है तो यहाँ पे अब 3'OH ग्रुप जो है वो 3'N पे फ्री है, सॉरी, एंड उसके अपोजिट यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री है विच इज एट दी 5'N। समझ आया? तो आप देख रहे हैं कि एंटी पैरेलल है क्योंकि वन साइड स्टार्टिंग फ्रॉम 5' to 3'N and another one is starting from the 3' to 5'N. So they are anti-parallel. Both the strands are anti-parallel in nature. Are you getting my point? ना अगर हम इनकी बॉन्डिंग की बात करें बेटा, तो जो हमने डिफरेंट अलग अलग बॉन्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ी है उसको मैं अगर एक साथ लिख दूं तो यहाँ पे बेटा ये बना रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड कह लो, ऑलराइट। नाउ दे आर फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑलराइट। अब हम देखेंगे कि बेसेस आपस में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ज्वाइंट है, तो ये बेटा बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑलराइट। समझ आया सभी को? एंड बेटा जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, presence of hydrogen bond between two bases, it is only helping in the stability of the structure of DNA. जो आप एंटी पैरेलल देख रहे हो and how stable is the structure of DNA, it is only because of the presence of hydrogen bond between the two bases. All right. Now I hope you have understood the structure well. Now let us understand all the concepts looking at these two images. So here is the structure of DNA. सबसे पहला जो आपको दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलराइट। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो सेकंड इमेज है दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हम इसको देखें तो हमने जो जो बातें पढ़ी हैं, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड, वी कैन सी एवरीथिंग इन इट, राइट? So everything that we have studied, sugar, phosphate and bases, now they all form sugar phosphate backbone. They are called as the backbone of the DNA, right? इसको हम क्या बोल देते हैं? backbone, right? जैसे हमारा skeletal system है, it is the main supporting structure of our body. Similarly, in case of DNA, sugar phosphate is also the backbone of DNA. All right? So here दिस स्ट्रक्चर, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 5'N से। तो 5'N हमने क्या पढ़ा था? दैट इट इज अ फ्री एंड, ऑलराइट, फ्री एंड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप विच इज जॉइंट विद द
deoxyribose sugar, deoxyribose sugar, ऑलराइट. एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर किसके साथ अटैच्ड है? डबल रिंग कौन से होते हैं? प्यूरिन. एंड दिस पर्पल कलर्ड स्ट्रक्चर इज द एडेनिन विच इज गिवन बिलो ऑल्सो. ये एडेनिन है विच इज जॉइंड विद द राइबोस डीऑक्सीराइबोज शुगर. नाउ फ्रॉम एंड दिस एडेनिन is joined with another base, and हमने क्या बात की थी? It is joined with the help of double bond, double hydrogen bond with another nitrogenous base, which is an pyrimidine. In this case, this is thymine. It is given below also कि yellow colored जो structure है ये thymine है, right? And this thymine is again joined with the another deoxyribose sugar, that is another strand of the DNA which has 3' free end. These all we have discussed. And अगर हम polarity की बात करें बेटा, तो polarity आपको दिख रही है, it is going from 5' to 3' end, and it is going from यहां से 3' end to 5' end पे जा रहा है. तो polarity कैसी होगी? एंटी पैरेलल होगी. This is the एंटी पैरेलल structure that you can see in the image. ऑलराइट, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि इनमें बॉन्डिंग आपको कैसी दिख रही है. सिमिलरली अगर आप नीचे देखें तो यू विल फाइंड साइटोसिन एंड गुआनिन आल्सो जॉइंड टुगेदर, बट दे आर जॉइंड विद द ट्रिपल बॉन्ड. हमने अभी तक बात की है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डू दी 3D स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताऊंगी इस कि जो साइटोसिन एंड गुआनिन है ये ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में ज्वाइंट होते हैं. दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. ऑलराइट, नाउ लुकिंग एट द सेकंड, द राइट हैंड साइड स्ट्रक्चर. तो यहां पे बेटा मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन. ये थायमिन है नाइट्रोजनस बेस. दिस इज साइटोसिन, साइटोसिन. दिस इज गुआनिन, दिस इज गुआनिन. ऑलराइट, एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप. ये फॉस्फेट ग्रुप है. एंड दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर. ऑलराइट, वी कैन सी ऑल 3 सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन स्ट्रक्चर. तो ये क्या बन गया हमारा? दिस इज द न्यूक्लियोटाइड्स. ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बॉन्डिंग, जो हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी वो एक बार हम यहां पे रिवाइज कर लेंगे. दैट ribose sugar and the bases, they formed which bond? Glycosidic bond, glycosidic bond. All right, glycosidic bond. Now the two sugar with phosphate group formed phosphodiester bond, that is first ester bond and second ester bond. Now they have formed phosphodiester bond. All right, एंड हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तो देख ही लिया है. यहां पे इन दी लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिस इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, बिटवीन दी 2 बेसेस. ऑलराइट, अब बेटा हम देख लेते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने पढ़ी थी. इन केस ऑफ प्यूरिन इट वाज 1-9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड इन केस ऑफ pyrimidine इट वाज 1-1. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले बेटा नीचे देख लेंगे जहां पे आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज गुआनिन. तो गुआनिन में बेटा देखो ये 1' एंड पे, एंड दिस इज द 9th नंबर. तो ये 1-9 पे क्या बना रहा है बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ऑलराइट, whereas if you see at the single ringed structure pyrimidine, that is thymine, तो आप देखेंगे it is at 1' and it is also the first position. तो यहां पे कौन सी लिंकेज बना रहा है? 1-1 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज इन केस ऑफ pyrimidine, एंड 1-9 की लिंकेज है इन केस ऑफ प्यूरिन्स. Whereas फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में देखो बेटा आपको दिख रहा है एक यहां पे 5' एंड है जहां से अटैच हो रहा है, एंड दिस इज द 3' एंड. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट 3' and 5' end of the ribose sugar. तो एवरीथिंग, दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थियोरेटिकली. तो ये मुझे आपको इमेज फॉर्म में बताना था, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल डू अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड द concept of phosphodiester bond and nucleotides. All right, so the question is,
calculate the number of phosphodiester bond in a linear double-stranded DNA where there are 200 base pairs. All right, so in this question they are asking about the number of phosphodiester bond in a double-stranded DNA जिसमें 200 base pairs हैं. All right, so हमारे पास क्या क्या given है? We have base pair, how many? 200 base pairs. All right, and अगर base pair 200 है तो how many nucleotides will be there? क्योंकि बेटा base pair है तो पेयर में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर इज डबल, सो वी हैव 400 न्यूक्लियोटाइड्स. ऑलराइट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो आई विल राइट डाउन हियर नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ऑलराइट, तो बेटा अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इफ आई ड्रॉ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लाइक दिस, यस, तो इसमें बेटा हमारे पास 5' एंड है, 3' एंड है, एंड अगेन वी हैव 5' एंड 3' एंड, दैट इज द एंटी पैरेलल नेचर. एंड वी नो दैट at 5' end, at both the 5' ends, we have free phosphate group. इतनी बात हमें पता है. Yes, it means they are not forming any bond with the sugar. तो कोई bond नहीं फॉर्म कर रहे. तो ऐसे कितने phosphate groups हैं? 2. It means they are not forming any phosphodiester bond. तो हमारा formula, can I write this? That total number of nucleotides minus 2, because we have 2 free phosphate group which are not forming any phosphodiester bond. So our answer will be 400 minus 2, that is 398 number of phosphodiester bonds are present in a linear double-stranded DNA where there are 200 base pairs. So this is a simple question. ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको नीट में भी आते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशंस. एंड क्यों, किस पे बेस्ड है? इट इज solely based on the understanding of the molecular structure of DNA जो हमने अभी किया है. तो आपने नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है कॉन्सेप्ट एकदम. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करो, आप देखते रहो उसको. Right? Keep on repeating it so that you understand it finally. All right? And इसके अलावा अगर आपको और भी similarly question follow आपने solve करने हैं तो you solve the DPPs which are available on EduRep, and उसके अलावा 31 years NEET के questions हैं बेटा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे on EduRep. Right? इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. You will better understand. अगर आपने concept समझ लिया and you are not trying to solve the questions, then there is no use, right? क्योंकि आपके questions जो आएंगे वो आपके understanding based आएंगे. So you must solve these questions to understand this whole concept in a much better way. Moving on to our next topic, that is 3D structure of DNA. So 3D structure of DNA, we call it as the double helical structure. We call it as the double helical structure. And this double helical structure was given by Watson and Crick. It was given by Watson and Crick in year 1953. But not only Watson and Crick has contributed in the structure of double helical structure जिन्होंने दिया है, but there were 2 another scientists जिन्होंने contribution की है थोड़ी बहुत in the structure of this DNA. Right? And those scientists were Chargaff and Franklin and Wilkins. Now, what they have done? They have contributed in the double helical structure of DNA.
although Watson and Crick have given this double helical structure of DNA, but Chargaff and Franklin and Wilkins have also contributed. So first we will talk about the contribution of Chargaff in the double helical structure of DNA. So Chargaff analyzed the chemical structure of DNA. He analyzed the chemical structure of DNA. All right, and after analysis he concluded, or I would say that he found out that molar concentration of adenine is equal to thymine and molar concentration of guanine is equal to cytosine, right? तो इसका मतलब ही फाउंड आउट कि जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना ही थायमिन का है एंड जितना गुआनिन का है उतना ही साइटोसिन का है. सो वी कैन राइट इट डाउन एज A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C. एंड इसमें से A प्लस G क्या है? A प्लस G आर प्यूरिन्स, दे आर दी प्यूरिन्स, एंड T प्लस C आर pyrimidines. So we can say that purines are equal to pyrimidines, right? This was what he suggested, given or contributed in the structure of DNA, right? After analyzing the chemical structure. And we can also write it in this form. ये अगर आपको calculate करना है तो we can calculate it in the another form, that A plus G by T plus C is always equal to 1. It will always be equal to 1. And if I try writing it as A plus T by G plus C, now अगर आप इस तरीके से calculate करके concentration निकालने की कोशिश करोगे, then it will always vary with species. It will always varies with species. और अगर purines by pyrimidines अगर आप कर रहे हैं तो it will always be 1. एंड अगर आप इसको इंटरमिक्स करके आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने की, इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, देन इट विल ऑलवेज वेरी विद द स्पीशीज. सो दिस प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू pyrimidine in the structure of DNA is the rule he has given, and it was called as the Chargaff's rule. It was called as the Chargaff's rule, and it is very important for NEET. आपको ये नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द Chargaff's rule in which in a double stranded DNA purines are always equal to the pyrimidine, and this was the contribution of Chargaff in the double stranded DNA. Next we will study about the contribution of Franklin and Wilkins. Alright, so they studied DNA with X-ray diffraction. They studied DNA with X-ray diffraction. All right, X-ray diffraction में study करने के बाद they have observed that throughout the double helical structure of DNA, the width of DNA is same or equal. मतलब ये जो आपको सारा स्ट्रैंड दिख रहा है डीएनए का, इसकी जो विड्थ है थ्रू आउट, चाहे कितने मर्जी टर्न्स हो, कितने मर्जी हेलिक्स हो, बट स्टिल द विड्थ ऑफ दिस डीएनए थ्रू आउट इज सेम. ऑलराइट, दे हैव गिवन दैट throughout the double helix or double helical structure of DNA, double helical structure of DNA, the width is same. Yes, that is 2 nm or 20 angstrom. अब यहां पे आप नीचे देखो, इन दिस डायग्राम हम इस विड्थ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस विड्थ.
it is same. It will be 2 nm or 20 angstrom. That is, it is same throughout the double helical structure, right? And now you can also see in this structure of DNA that there are various helix or turns, right? And अगर हम हर टर्न की बात करें, so each turn measures around 3.4 nm. कितना आता है? 3.4 nm और 3.4 angstrom हर टर्न की मेजरमेंट है. एंड इफ आई एम सेइंग कि दिस इज वन टर्न, ये पूरा एक सिंगल टर्न है, राइट? तो इसमें आपको दिख रहे हैं देयर आर वेरियस बेसिस. कितने बेस पेयर्स हैं, है ना? कितने बेस पेयर्स हैं? तो अगर हम कैलकुलेट करें इनको, सो ईच टर्न will have around 10 layers of bases. 10 layer of bases. आपको 10 मिलेंगे. If you will count in this length of 3.4 nm, तो आपको कितने layer of bases मिलेंगे? 10, right? And हम इस 3.4 nm का जो एक बेटा लंबा टर्न है, इसको हम बोलते हैं pitch. What do we call it as? Pitch. All right? अच्छा, अब उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन दी फ्रॉम आफ्टर स्टडिंग डीएनए विद द एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, एंड दे हैव आल्सो सेड, उन्होंने बताया दैट डीएनए इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स. कैसा है ये? डीएनए इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स and it has various complementary strands as well. It has various complementary strand. Complementary strand कौन से बेटा? That इधर भी हैं base pairs and उन्हीं के complementary यहाँ भी है base pairs. जैसे purines are joined with pyrimidines. तो ये बेटा आपस में क्या बनाते हैं? They form complementary strands. All right? तो ये बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. एंड अगर हम स्ट्रक्चर में देखें बेटा, तो हमने बात की थी अबाउट शुगर फॉस्फेट बैकबोन. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए. शुगर फॉस्फेट बैकबोन. All right? And inside this sugar phosphate backbone, you can easily see the nitrogenous bases projected inside like this. यहां पे देखो कैसे प्रोजेक्टेड है अंदर की तरफ. All right? And this is happening throughout the DNA. So they are projected inside and they are joined together by the bonds that we have studied earlier. And also बेटा आपको पता है कि दो bases जो हैं वो किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? They join with the help of hydrogen bonds. And remember one thing, अब मैं जो आपको important point बताने वाली हूं, that A always pairs with T. Adenine always pairs with T, but with the double hydrogen bond. But in case of guanine that pairs with cytosine, it will always pair with the triple bond hydrogen. समझ में आया? ये फैक्ट आपने याद रखना है. All right? कि इसमें A and T के बीच में बॉन्ड बेटा डबल हाइड्रोजन का बनता है, and G and C के बीच में there is always a triple hydrogen bond. Till now we studied about the structure of DNA, the molecular structure of DNA. ठीक है, हमने उसके सारे basic parts के बारे में डिस्कस किया. We understood what all is there, the types of subunits which are present in the DNA. Now we will start with our topic, that is packaging of DNA. कि कैसे हमारा 2.2 meters of DNA is so tightly packed in a very small nucleus. All right? So let us now begin with our topic. So बेटा first of all हम पहले नेचर की बात करेंगे कि डीएनए कैसा होता है इन नेचर. सो लेट मी टेल यू दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर. इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड व्हाई? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. हमने पढ़ा था दैट न्यूक्लियोटाइड में वन ऑफ द सब यूनिट इज फॉस्फोरिक एसिड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली DNA is acidic in nature, and being acidic means DNA is negatively charged. It is negatively charged. तो हमें ये पता लग गया that DNA के ऊपर जो चार्ज होता है that is negative. And why? Because it is
acidic in nature. Alright, so with this we will first start understanding the packaging of DNA in case of prokaryotes. हम सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग किसके केस में? प्रोकैरियोट्स. एंड इन प्रोकैरियोट्स आल्सो वी विल टॉक अबाउट E. coli. We will talk about E. coli, that is Escherichia coli. Alright, so सबसे पहले बात करेंगे बेटे, हमने बेस पेयर्स के बारे में we already did that how many base pairs are present in case of E. coli. Right, so this we have to remember, it is 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. Getting 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs, कितने ये amount present होता है in case of Escherichia coli. Now if we talk about the distance between two base pairs, अगर हम दो base pairs के बीच में कितना distance होता है उसके बारे में बात करें तो I'll mention that too. Distance between two base pairs. All right, so that is 0.34 nanometers, that is 0.34 mm. right, अब हमें लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करना है कि कितना बड़ा होता है ई कोलाई का डीएनए. राइट, तो लेंथ ऑफ डीएनए के लिए हम बेटा कैलकुलेट करेंगे. हाउ विल वी कैलकुलेट? दैट इज 4.6 into 10 raised to power 6 multiplied by 0.34. बट बेटा इसकी वैल्यू इज इन नैनोमीटर्स एंड हमें चाहिए किसमें? मिलीमीटर्स में. सो मिलीमीटर्स में हमें वैल्यू निकालने के लिए आई मल्टीप्लाई अगेन इट विद 10 raised to power -6 एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन द आंसर विल बी 1.36 मिलीमीटर. दैट इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन केस ऑफ ई कोलाई. प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं बेटा, ई कोलाई के केस में ये लेंथ आ जाती है डीएनए की. नाउ द वैल्यू इज इन माइक्रोमीटर्स. राइट, बट हमें सॉरी द वैल्यू इज इन मिलीमीटर. मिलीमीटर में वैल्यू है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ई कोलाई आपने देखा है, ई कोलाई कितना माइन्यूट होता है? ई कोलाई इज वेरी माइन्यूट, दैट इज इन मिलीमीटर्स, सॉरी दैट इज इन माइक्रोमीटर्स. ई कोलाई होता है माइक्रोमीटर्स में, विच इज वे मोर स्मॉलर देन द मिलीमीटर. राइट, तो ये मिलीमीटर 1.6 मिलीमीटर का लेंथ माइक्रोमीटर में कैसे आता है? अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे आ सकता है माइक्रोमीटर में. ऑलराइट, सो बेटा सिंपल सा आंसर है इसका, मैं आपको जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, दैट इज डीएनए इज कॉइल्ड अपॉन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. द रीजन इट इज सो हाईली कॉइल्ड कि जो ये मिलीमीटर वाली चीज है वो माइक्रोमीटर में फिट हो जाती है. It is only because that DNA is coiled upon non-histone proteins. Non-histone proteins. All right. And अगर आप बात करो कि जैसे हमने DNA का नेचर देखा था, that DNA is acidic in nature, है ना, and it is negatively charged. तो इसके अपोजिट कुछ तो होना चाहिए. We want something to be positive, right? तभी तो बेटा बाइंडिंग हो पाएगी. ऐसा आपको पता है कि सेम चार्जेस विल रिपेल. अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे देन ओनली दे विल अट्रैक्ट, राइट और नॉट? सो इस केस में बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर. दे आर बेसिक इन नेचर. ऑलराइट, एंड बेसिक इन नेचर का मतलब क्या? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. They are positively charged. But हमने डीएनए के केस में देखा था बेटा that DNA is acidic in nature and it is negatively charged. तब आपको पता है that if the non-histone proteins are positive and DNA is negative, so coiling is possible. All right, the coiling is possible. And coiling होती किस तरीके से है वो भी देख लेते हैं. So these are the बेटा non-histone proteins. आपको ऐसे कुछ नजर आएंगे non-histone proteins. All right. एंड अगर हम डीएनए कॉइलिंग की बात करें तो बेटा डीएनए कॉइल करना स्टार्ट करते हैं ऑन टॉप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक दिस. राइट, कुछ इस तरीके से कॉइलिंग स्टार्ट होती है ऑन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. इसमें बेटा ये डीएनए स्ट्रैंड है, इट इज नेगेटिव, एंड ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, दे आर बेसिक, सो दे आर पॉजिटिव. तो नाउ दैट इज हाउ कॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस. उसके बाद बेटा कॉइलिंग होते होते पास आते आते दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ लूप लाइक दिस, एंड फाइनली
finally they will form a complete loop like this. अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा है कि बेटा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता कोई भी, है ना, एंड डीएनए फ्री प्रेजेंट होता है इन द सेल, बट दैट डजंट मीन इट विल नॉट कॉइल. इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉइल नहीं करेगा, इट विल कॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म न्यूक्लियोइड. क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोइड. ऑलराइट, इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया न्यूक्लियोइड विच इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. एंड कॉइलिंग कुछ इस तरीके से होती है. तो हमें इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है दैट एसिड डीएनए इज बीइंग एसिडिक which is negatively charged, binds with positively charged proteins, histone proteins, and that is how packaging of DNA takes place. अब हमने बात कर ली है prokaryotes की. Now we will see how this binding takes place in case of eukaryotes. Now let us start packaging of DNA in case of eukaryotes. We will talk about eukaryotes now. All right, so packaging कैसे होती है वो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं. हाउ पैकेजिंग इज डन. सो बेसिकली पैकेजिंग के लिए हम करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए. लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स. नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर. एडजेसेंट बेस पेयर. तो हमारे पास यूकैरियोट्स में कितना है नंबर ऑफ बेस पेयर्स? दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 नैनोमीटर्स. बट क्योंकि हमारा डीएनए क्या होता है, मीटर लॉन्ग होता है, तो आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 10⁻⁹ एंड देन द लेंथ विल बिकम इन मीटर्स. तो हमारा जो डीएनए का लेंथ आ जाएगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दैट इज 2.2 मीटर्स लॉन्ग. अब देखो डीएनए का लेंथ आ गया 2.2 मीटर्स लॉन्ग, बट हमारा न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर्स. 10⁻⁻⁶ मीटर्स. तो अब जो न्यूक्लियस 10.6 मीटर्स इतना छोटा है कंपेयर टू डीएनए विच इज 2.2 मीटर्स लॉन्ग, तो इसमें फिट कैसे आएगा? हाउ विल इट फिट इन इट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट. सो बेटा अब क्योंकि इतना लंबा डीएनए है, मीटर्स में डीएनए है, सो इट विल रिक्वायर अ लॉट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग. कुछ एक्सटेंसिव पैकिंग इसको चाहिए, राइट? तभी तो ये फिट आ पाएगा, वरना इतना लंबा डीएनए कैसे आ पाएगा? सो इट रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव पैकिंग. कुछ ज्यादा ही पैकेजिंग की जरूरत है इसको. एंड टू पैक दिस लॉन्ग डीएनए वी नीड व्हाट? वी नीड पैकेजिंग प्रोटीन्स. In case of eukaryote, we need packaging proteins. Packaging proteins. अब बेटा जो पैकेजिंग प्रोटीन्स हैं वो दो होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में दो तरीके के पैकेजिंग प्रोटीन्स हमें लगते हैं. ऑलराइट, हम देख लेते हैं कौन कौन से. सो फर्स्ट वन इज द हिस्टोन प्रोटीन्स. सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो है हिस्टोन प्रोटीन्स, जो हमने प्रोकैरियोट्स में भी देखे थे. ऑलराइट, हिस्टोन प्रोटीन्स. एंड सेकेंड वी रिक्वायर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. ऑलराइट, अब बेटा बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का जो वेट होता है. दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट. हिस्टोन प्रोटीन्स का वेट क्या होता है? दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट. वेयर एज जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट. हाई मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है जी. अब बेटा नेचर की बात कर लेते हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं. So we have studied earlier also that histone proteins are basic in nature. They are basic in nature. So that is the reason why they are positively charged. Whereas non-histone chromosomal proteins are beta acidic in nature. They are acidic in nature and because of that they have negative charge. All right.
तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वी रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन्स, ऑलराइट। एंड लेट मी टेल यू दैट पैकेजिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हैज 4 स्टेजेस, 4 लेवल्स। कितने लेवल्स की पैकेजिंग होती है? इट इज 4 लेवल्स, इट हैज 4 लेवल्स। तो बेटा अगर हम बात करें तो पहले 3 लेवल्स में वी रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन्स ओनली, कि पहले 3 लेवल तक तो हमें हिस्टोन प्रोटीन्स ही चलते हैं, बट आफ्टर दैट व्हेन देयर इज अ 4th लेवल, वहां पे वी विल रिक्वायर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ऑलराइट, आर वी क्लियर टिल हियर? सो नाउ वी विल सी कि हिस्टोन प्रोटीन्स किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स वी हैव इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ऑलराइट, सो वी हैव H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज पैकेजिंग प्रोटीन्स, द नेम ऑफ दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बेटा साथ में नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ऑलराइट। नोट्स हमने नहीं छोड़ने हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा बात करते हैं कि क्योंकि ये बेसिक है, अमाइनो एसिड्स इसमें है, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर बेसिक, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है। तो बेटा जो H2A एंड H2B है, दिस इज लाइसिन रिच, दिस इज लाइसिन रिच, इट इज एन अमाइनो एसिड। लाइसिन क्या है? अमाइनो एसिड है। एंड अगर आप बात करो H2A एंड H2B हिस्टोन प्रोटीन की, सो दे आर लाइसिन रिच, वेयर एज H3 एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन्स आर arginine rich, they are arginine rich। समझ में आ गया? अब बेटा एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग विद यू, दैट जो H2A, H2B, H3 एंड H4 है, ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स है बेटा, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर और कंजर्व्ड इन नेचर। कैसे है ये? कंजर्व्ड है, ठीक है जी, ये जल्दी चेंज नहीं होते, ठीक है, नेचर इनका चेंज नहीं होता। वेयर एज जो H1 प्रोटीन है, दे चेंज, they keep on changing, and that is why they are not conserved, they are not conserved। all right, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई बेटा। हिस्टोन प्रोटीन्स हमने देख लिए कि कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इनके नाम्स। एंड द 2 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट, फर्स्ट वन इज द हिस्टोन प्रोटीन्स, सेकेंड इज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। पता होना चाहिए बेटा कौन सा बेसिक है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक, ये हमें पता है। एंड वेयर एज जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज विच आर एसिडिक, ठीक है। नाउ वी विल सी द पैकेजिंग। अब हम करने वाले हैं डीएनए की पैकेजिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द पैकेजिंग ऑफ डीएनए नाउ। So let us now start packing the eukaryotic DNA with the help of histone proteins, all right? तो अब बात करते हैं कि पैकिंग होती कैसे है। So what happens is कि जो हमने different type of proteins पढ़े हैं, histone proteins पढ़े हैं, for example H1, H2A, H2B, H3 and H4, इसमें से H1 तो बेटा क्या है, वो conserved नहीं होता, तो हम बात करेंगे 4 histone proteins की, which are H2A, H2A, H2B, H3 and H4। Now अब ये क्या होता है बेटा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, what they do is they copy and form the octamers of these proteins। जैसे मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो it will form an octamer, ठीक है। और ये octamer फर्दर हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, ऑलराइट। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आ गया है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द ऑक्टामर ऑफ व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन्स। एंड अब हमने स्टार्ट करने हैं अपने 2.2 मीटर्स के डीएनए को पैक करना, ऑलराइट। तो अब ये इमेज देखेंगे बेटा, तो इमेज में ये तो हमारे पास आ गया हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन। एंड जो इसके ऊपर कॉइल करेगा वो आ गया है डीएनए, राइट। ऑलरेडी आपको मेंशन भी है हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए, ऑलराइट। व्हेन द पैकेजिंग स्टार्ट्स, तो आप देखेंगे कि टर्न कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया पहला टर्न, दिस इज द फर्स्ट टर्न डीएनए का। एंड ये सेकंड होते होते
रह गया, इसका मतलब जो सेकेंड टर्न है वो हाफ ही हुआ है। तो मतलब क्या हो रहा है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे हम बॉल के ऊपर थ्रेड बांधते हैं ना, तो कुछ उसी तरीके का डीएनए जो है वो कॉइल करता है ऑन हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात कर लें बेटा, तो चार्ज हमने क्या पढ़ा था, हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑलराइट, तो अब आप देखो कि जो पैकेजिंग हो रही है उसमें आपके कितने टर्न्स हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 टर्न्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट 1.5 टर्न भी नहीं है, इट इज मोर देन 1.5 टर्न विच हैज टेकन प्लेस। ऑलराइट, सो हमारे पास टर्न कितने हो गए, टर्न विल बी 1 3/4। ये हमारे टर्न्स हो गए हैं किसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के। एंड 1 3/4 टर्न हैज हाउ मेनी बेस पेयर, 200 बेस पेयर्स। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। तो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए ने 1 3/4 टर्न्स लिए हैं एंड आप देख रहे हो, नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्न, जितने भी टर्न लेने थे, लेने के बाद बेटा ये फ्री एंड्स बचे हैं, यहां पे देयर आर फ्री एंड्स, बट उनको बाइंड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वहां पे आता है बेटा H1 हिस्टोन प्रोटीन, वहां पे आ जाता है H1, क्योंकि हमने यहां पे देखो H1 इंक्लूड नहीं किया है, वी ओनली इंक्लूडेड H2A, H2B, H3 एंड H4। ऑलराइट, जिन्होंने फॉर्म किया है ऑक्टामर, जो कि क्या है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ऑक्टामर बना है। तो H1 क्या है, ये बाहर की तरफ लग जाता है एंड सिंस ये बाहर से अटैच करता है, ये बाहर से बाइंडिंग का काम करता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्लगिंग प्रोटीन। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लगिंग प्रोटीन, प्लगिंग प्रोटीन। सो वी सॉ दैट हिस्टोन्स जो है, हिस्टोन प्रोटीन्स, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स आर मेकिंग एन ऑक्टामर। ऑक्टामर बना दिया, ये कोर बन गया बेटा हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का, है ना, ऑक्टामर के फॉर्म में। एंड उसके ऊपर क्या कॉइल हो रहा है, डीएनए इज बीइंग कॉइल्ड विद हाउ मेनी टर्न्स, 1 3/4 टर्न्स विद हाउ मेनी बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स। एंड इनके एजेस को बाइंड करता है विच प्रोटीन, H1 प्रोटीन, विच इज कॉल्ड एज द प्लगिंग प्रोटीन एज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है जी, तो अब जो बेटा ये स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रक्चर की नॉलेज विद द चार्जेस बोथ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए हैव, ये आपको पता होना चाहिए। एंड न्यूक्लियोसोम इज called as or considered as basic unit of packing. It is the basic unit of packing. All right? It means there are various histone octamers on which DNA is coiling. क्योंकि DNA का लेंथ क्या है, DNA तो बहुत बड़ा है, and but DNA needs a lot of histone proteins. तो इसका मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे देयर आर वेरियस हिस्टोन ऑक्टामर्स ऑन विच डीएनए इज कॉइलिंग, बिकॉज डीएनए अब क्या है, डीएनए लेंथ इज 2.2 meters एंड इट हैज टू सुपर कॉइल, राइट, टू फिट इन द न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था दैट पैकेजिंग कितने लेवल्स में होती है, पैकेजिंग टेक्स प्लेस इन 4 levels। 4 लेवल्स की पैकिंग होती है बेटा। हम फर्स्ट लेवल हम देख चुके हैं, तो फर्स्ट लेवल को मैं थोड़ा सा और बता देती हूं आपको। तो यहां पे मैं लिख देती हूं फर्स्ट लेवल की पैकिंग कैसी होती है बेटा। दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर वेरियस हिस्टोन ऑक्टामर्स व्हिच आर प्रेजेंट फॉर द कॉइलिंग ऑफ डीएनए लाइक दिस। ऑलराइट, एक के नीचे एक के नीचे एक, more or less like this, right? And DNA is coiling on these histone octamers. तो बेटा ये इस तरीके के वेरियस हिस्टोन ऑक्टामर्स प्रेजेंट हैं ऑन विच डीएनए इज सुपर कॉइलिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये कैसा लुक दे रहा है बेटा, इस स्ट्रक्चर को जैसे कॉइल कर रहा है इन दी फर्स्ट लेवल, इट इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इट इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग क्या हो गया? स्ट्रिंग इज द डीएनए
एंड बीड्स आर द न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर, सॉरी हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर बेटा उसके ऊपर डीएनए कॉइल कर रहा है, तो हमने हिस्टोन ऑक्टामर को बीड्स बना दिया एंड डीएनए के थ्रेड को हमने स्ट्रिंग बना दिया। सो दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स डायमीटर, सो इट्स डायमीटर इज 10 नैनोमीटर्स, 10 नैनोमीटर्स। तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम मॉडल बना है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना है, इट ऑल्सो हैज डायमीटर ऑफ 10 अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 नैनोमीटर्स। ऑलराइट, अब बेटा हम बात करते हैं सेकेंड लेवल की। हम सेकेंड लेवल की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट लेवल हो गया बेटा। फर्स्ट लेवल का ये एक छोटा सा पार्ट था, ये एक स्मॉल यूनिट हमने की है इसमें। एंड सिमिलरली ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज्ड होता है जो मैंने आपको फर्स्ट लेवल में दिखाया है। ऑलराइट, अब ऑन द सेकेंड लेवल इट विल कॉइल इवन मोर because it is going towards the supercoiling. It is going towards the supercoiling. So it will coil a little more and it will coil in a solenoid form. तो ये solenoid structure बना लेता है. It will form a solenoid structure. I am so sorry. It will form a solenoid structure like this, on which histone octamers are placed like this. इस तरीके से आपको histone octamers नजर आएंगे ऑन दिस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया बेटा? सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड तरीके से कॉइल हो रहा है, सोलेनॉइड। ऑलराइट, एंड डायमीटर फर्स्ट लेवल में कितना था? 10 नैनोमीटर्स। एंड अब इसका डायमीटर हो जाएगा बेटा 30 नैनोमीटर्स। डायमीटर विल बी 30 नैनोमीटर्स। नाउ कमिंग टू दी थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे आ गए बेटा। थर्ड लेवल पे इट विल कॉइल इवन मोर बिकॉज इट हैज टू फिट इन 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो इसके कॉइलिंग के लिए इट विल कॉइल इवन मोर, तो ये और ज्यादा कॉइलिंग शो करेगा लाइक दिस। इट इज कॉइलिंग इवन मोर। तो अब ये क्या स्ट्रक्चर बना देगा बेटा? इट विल फॉर्म अ सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इट विल फॉर्म अ सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ कॉइलिंग। एंड इसका डायमीटर बेटा क्या हो जाएगा? देखो इस केस में कितनी ज्यादा कॉइलिंग हो रही है, इट इज कॉइलिंग इवन मोर। तो इसका जो डायमीटर है वो 300 नैनोमीटर्स है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ लेवल। अब फोर्थ लेवल पे आते आते इट विल फाइनली फॉर्म अ क्रोमेटिड। अब क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, तो इट विल फॉर्म अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड। ठीक है, एंड हर क्रोमेटिड का जो डायमीटर है बेटा वो 700 नैनोमीटर्स है। 700 नैनोमीटर्स, दिस इज ऑल्सो 700 नैनोमीटर्स। तो टोटल क्या हो गया? 1400 नैनोमीटर्स। 1400 नैनोमीटर्स विल बी द क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स फॉर्म हो गए। तो हम कैसे आए हैं बेटा लेवल पे? हम कैसे कैसे आ रहे हैं? सबसे पहले बीड्स ऑन स्ट्रिंग फर्स्ट लेवल, जो आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल जो हमने सबसे पहले ये सिंगल न्यूक्लियोसोम मॉडल हमने यहां पे किया है। ऑलराइट, तो इसी का बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म होता है ऑन द फर्स्ट लेवल। देन कम्स द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट इट converts into super solenoid, and finally it gets converted into chromatids, which is present in our nucleus. All right, so that is how packaging in case of eukaryote is taking place. अब बात करते हैं बेटा रेशियो की कि पैकेजिंग रेशियो क्या है हर लेवल पे, बिकॉज पैकेजिंग की एक पर्टिकुलर रेशियो होती है दैट हाउ मेनी टाइम्स द डीएनए इज बीइंग पैकेज्ड। तो उसके रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे बेटा रेशियो इज 7 रेशियो से इट इज बीइंग पैकेज्ड। इन द सेकेंड लेवल इट इज 6। इन थर्ड लेवल 35 का रेशियो है पैकेजिंग का। एंड फाइनली जो लेवल आता है it also has some level of packaging, ratio of packaging, that is 5. And अगर आप packaging ratio in total आप निकालते हो इसका packaging ratio in total of all 4 levels, so it will become 7 multiplied by 6 multiplied by 35 multiplied by 5, and the answer will be approximately 7350, कि मतलब 7350 times approximately आप कह लो
in between 7,000 to 8,000 times DNA is being packaged, right? मतलब इतने ज्यादा बार डीएनए जो है वो पैकेज हो रहा है. सो ये हमने इसकी रेशियो निकाली है, एंड वी स्टडीड अबाउट 4 लेवल्स, एंड आपको पता लग चुका है दैट न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ पैकेजिंग. तो बेटा न्यूक्लियोसोम तो रहेगा ही रहेगा, एंड न्यूक्लियोसोम के अराउंड ही द स्ट्रक्चर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड एंड क्रोमेटिड्स आर बीइंग फॉर्म्ड. ऑलराइट, तो इस वजह से टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नीट पर्सपेक्टिव से, एंड द नेम्स ऑफ दीज हिस्टोन प्रोटीन्स. नीट में आपको ये बेटा पूछा जाता है, आते हैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस. ऑलराइट, एंड रिमेंबर वन थिंग बेटा, जिन डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिनको पार्टिसिपेट करना होता है, दे आर नॉट इन द न्यूक्लियोसोम. वो न्यूक्लियोसोम में अटैच्ड नहीं होते हैं, वो हिस्टोन ऑक्टामर पे अटैच्ड नहीं होते हैं. दे आर फ्री बिकॉज दे हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. Alright, now let us quickly revise whatever we have studied with the help of this diagram. So this is the DNA. This is the structure of DNA which we already did. पहला हमने कर लिया था molecular structure of DNA. Molecular structure. Alright. Now we will talk about its packaging. So packaging starts from here. So this DNA has to be packaged, right? And हमने डिस्कस किया था दैट पैकेजिंग टेक्स प्लेस इन दी 4 लेवल्स. सो वी विल सी दी 4 लेवल्स इन दिस इमेज फ्रॉम 1 टिल दी 4th लेवल. ऑलराइट, तो डीएनए हैज स्टार्टेड पैकेजिंग ऑन दी हिस्टोन ऑक्टामर. तो ये आपका फर्स्ट लेवल आ गया. दिस इज द लेवल 1 इन विच यू कैन सी द हिस्टोन ऑक्टामर. हिस्टोन ऑक्टामर, राइट? कौन सा मॉडल आपको दिख रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियोसोम. वी कैन सी द न्यूक्लियोसोम मॉडल हियर, दिस वन. Alright, and देखो beads on string structure आपको नजर आ रहा है, right? The string is coiled in on the beads on the histone octamer. Alright, so this is the level 1. Next forms the solenoid structure. तो ये second structure जो है बेटा वो solenoid form कर रहा है. The solenoid हमने जो पढ़ा था solenoid structure. Alright, this is level 2. Then comes और coiling होती है, एक और extensive coiling. That is level 3 in which super solenoid is formed. सुपर सोलेनॉइड इज फॉर्म, एंड सुपर सोलेनॉइड फॉर्म करते करते इतनी सुपर कॉइलिंग के बाद व्हाट इज फॉर्म्ड? क्रोमेटिड. क्रोमेटिड्स बन जाते हैं. दैट इज लेवल 4. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग पैकेज्ड. डीएनए 4 लेवल्स में जो हमने डिस्कस किया है पहले इन थियोरेटिकली, एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन दिस इमेज. Let us now quickly try solving this question which is related to our topic, which has also been asked in your NEET 2017. And the question is, DNA fragments are. DNA fragments are what? Charge के बारे में पूछा है. Are they negatively charged, positively charged, neutral, or depends on the size? So beta, we have covered in our topic that DNA is acidic in nature. It is acidic in nature. And because it is acidic in nature, the DNA is what? Positively charged or negatively charged? I hope you all know the answers till now that DNA is negatively charged. It is negatively charged because of the presence of phosphoric acid, and that is why it is acidic in nature. So our answer is, answer क्या हो गया हमारा? Answer is A. All right? तो इसी तरीके के अगर आप कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस मोर, तो आप जा सकते हो एड्यूरेफ पे. एड्यूरेफ पे आपको मिलेंगे वेरियस डीपीपीज. बहुत सारे डीपीपीज हैं प्रैक्टिस के लिए. नीट के बहुत सारे 31 ईयर्स नीट क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल थ्रू विच यू कैन प्रैक्टिस रियली वेल. ऑलराइट, सो नाउ दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक. I really hope the concepts of molecular structure and packaging of DNA is clear to you. You can now learn and understand this topic in detail on EduRev with the help of notes available on the platform, and also solve various tests, DPPs, which I've already discussed with you. Alright, so that you can understand well and do well in your upcoming exams. And you can also unlock all the logged videos, docs and tests of class 12th with EduRev Infinity Plan and ace your exams at less than 80 rupees per month. Thank you.